Yes, good morning students. In today's class, we will learn about the use of capital letters and full stop. Okay, so we will start a chapter number 4, capital letters and full stop. We all know that there are two types of letters in English. English में two types of letters होते हैं. One are capital letters and one are small letters. So these are the capital letters: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. These all are the capital letters and these all are the small letters. But where do we use capital letters and where do we use small letters? So we will know the correct use of capital letters in this class. So when we start a sentence, we always use first letter capital. जब भी हम एक सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं. We write small letters in our sentences. We use small letters, but we also use capital letters. हम capital letters का भी use करते हैं, but where do we use capital letters? हमें capital letters का use कहाँ करना चाहिए, ये हमें सीखना है. So look there, these all are the capital and these all are the small letters. So we write with small letters, but we also use capital letters. Let us learn the correct use of capital letters. Now I will write some sentences here. Sentence number 1. This is my book. This is my book. And number second sentence is, he is my best friend. So number first sentence is, this is my book, and number second sentence is, he is my best friend. So look at the both sentences. In the both sentences I write first letter capital. दोनों ही sentences में मैंने first letter capital लिखा है. You can see, right? So first rule is, we always start a sentence with a capital letter. So we always begins a sentence begins a sentence with a capital letter. So हम जब भी कुछ सेंटेंस राइट करते हैं तो हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है. वी ऑलवेज स्टार्ट अ सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर. ये रूल है, जब भी सेंटेंस हम लिखेंगे तो फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा. वी ऑलवेज स्टार्ट अ सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर. ओके, एंड वी यूज कैपिटल लेटर इन अदर प्लेसेस ऑल्सो. हम कैपिटल लेटर्स का यूज और भी जगहों पर करते हैं. लाइक we use capital letters at the beginning of the special names. Special names means जो particular names होते हैं, proper nouns होते हैं, उनका first letter भी हम capital write करते हैं, capital लिखते हैं. Particular जो names होते हैं, there are two types of nouns. One are common nouns, one are proper nouns. So proper nouns are the special names. Proper nouns ही special names होता है, special names को ही हम proper nouns कहते हैं. So look here, capital letters come at the beginning of a sentence. Capital letters जो है वो sentence की beginning में आते हैं. First letter हमेशा capital होता है. And ये तो आपका फर्स्ट रूल हो गया. एंड सेकेंड रूल क्या है? द स्पेशल नेम्स आर ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर. अब चाहे वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में आए या मिडिल में आए या फिर एंड में आए,
फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा स्पेशल नेम्स का. लुक एट द एग्जांपल्स. माय, I write, if I write he and Priya, he and Priya, वह और प्रिया are my best friends. Or I write Rahul, if I write two names, Rahul and Ronak are my classmates. राहुल एंड रौनक मेरे क्लासमेट्स हैं. ही एंड प्रिया आर माई बेस्ट फ्रेंड्स, वह और प्रिया मेरी बेस्ट फ्रेंड्स है. सो राहुल इज अ स्पेशल नेम, रौनक इज ऑल्सो अ स्पेशल नेम. मीन्स प्रॉपर नाउन. स्पेशल नेम्स जब हम किसी कॉमन नाउन को एक पर्टिकुलर नेम दे देते हैं, लाइक राहुल इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर बॉय, एक बॉय को नेम दिया है. रौनक, दिस इज ऑल्सो अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर बॉय, सो दिस इज ऑल्सो स्पेशल, ये भी स्पेशल है. एंड इनका फर्स्ट लेटर हमने कैपिटल राइट किया है, राइट. दिस इज ऑल्सो कैपिटल. जबकि हमने रूल में क्या पढ़ा था कि सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है. लेकिन इसके अलावा जो अपने स्पेशल नेम्स होते हैं उनका फर्स्ट लेटर भी हमेशा कैपिटल लिखा जाता है. अब चाहे वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में आए, मिडिल में आए या फिर एंड में आए, तो भी उनका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल राइट डाउन करते हैं हम. There are some special names. Look, the special names that begin with capital letters are as follows. Special names कौन कौन से हो सकते हैं? Like names of persons. Persons के names भी special होते हैं. Like ज्योति. ज्योति is the name of a particular girl. Particular girl को name दिया है ज्योति. So जितने भी आपके names होते हैं, particular persons के name होते हैं, like ज्योति, राहुल, रौनक, मिताली, मीरा, प्रिया. These all are the special names of persons. ये persons के स्पेशल नेम्स हैं जो पर्टिकुलर उन्हीं को हमने दिए हैं. नेक्स्ट, नेम्स ऑफ डेज. नेम्स ऑफ डेज आर आल्सो स्पेशल नेम्स. व्हाई? बिकॉज हर एक डे का पर्टिकुलर नेम है, राइट. मंडे, सैटरडे, ट्यूसडे. सो नेम्स ऑफ डेज, डेज के नेम भी हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. All the days names are also special names. And names of months are also special names because ये भी particular month का name है. Like first month हमारा जनवरी है, तो जनवरी particular एक month का name है, so वो एक special name हो गया. Like February, July, January, March, April, May, June. So these all are the special names of months. ये सब क्या है? months के स्पेशल नेम्स हैं. तो इनका भी फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल राइट होगा, कैपिटल लिखा जाएगा. नेक्स्ट, नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स. हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं दैट वी स्टडी, जो हम पढ़ते हैं, उन वो भी क्या है? पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नेम है. लाइक इंग्लिश, इंग्लिश एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नेम है. आर्ट, दिस इज ऑल्सो पर्टिकुलर सब्जेक्ट नेम. Physics, chemistry, maths, these all are the particular subjects names. So these are also special names. So we start these names with a capital letter. So हम इन names को भी हमेशा capital letter से ही start करते हैं. Next, names of countries and cities. जितनी भी countries हैं, cities हैं, ये सब क्या है? Places. So there are some special names of places. Places के भी special names होते हैं. Like इंडिया, दिस इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री. हमारी कंट्री का नेम है इंडिया. सो इंडिया का फर्स्ट लेटर क्या होगा? कैपिटल राइट क्लिक करेंगे हम, कैपिटल ही लिखेंगे हमेशा. जापान, इट इज ऑल्सो अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ कंट्री. ये भी एक कंट्री का पर्टिकुलर नेम है. ओके. एंड दिल्ली, दिस इज द स्पेशल नेम ऑफ अ सिटी. ये भी एक पर्टिकुलर सिटी का नेम है, दिल्ली. ओके. लाइक जयपुर, जयपुर इज ऑल्सो अ पर्टिकुलर नेम. ये भी एक पर्टिकुलर नेम है, नेम ऑफ अ सिटी, राइट. एंड
राजस्थान, दिस इज ऑल्सो अ स्पेशल नेम, नेम ऑफ अ स्टेट, ये भी एक पर्टिकुलर स्टेट का नेम है। ओके, व्हेन वी यूज स्टेट, स्टेट आपका कॉमन हो गया, स्टेट कॉमन नेम हो गया बिकॉज वी यूज द वर्ड स्टेट फॉर ईच एंड एवरी स्टेट, हर एक स्टेट के लिए हम स्टेट वर्ड यूज करते हैं। लेकिन अगर मैंने बोला राजस्थान, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टेट का नेम है राजस्थान, सो दिस इज स्पेशल एंड दिस इज कॉमन, ये कॉमन हो गया एंड ये स्पेशल, क्योंकि स्टेट वर्ड जो है हर एक 28 स्टेट्स के लिए, हर एक स्टेट के लिए स्टेट वर्ड यूज किया जा रहा है, तो ये एक कॉमन नाउन हो गया। सो हम स्टेट का एस कैपिटल हर बार कैपिटल नहीं लिखेंगे, इफ दिस वर्ड कम्स ऑन द फर्स्ट प्लेस, अगर स्टेट वर्ड पहले नंबर पर आता है तो ही एस कैपिटल होगा। ओके, सो दीज ऑल आर द स्पेशल नेम्स। नेक्स्ट, नेम्स ऑफ स्कूल्स, नेम्स ऑफ अनदर बिल्डिंग्स, और भी बिल्डिंग्स होती हैं जिनका पर्टिकुलर नेम होता है, लाइक नेम्स ऑफ स्कूल्स। स्कूल हम हर एक वर्ड, हर एक स्कूल के लिए स्कूल वर्ड यूज कर सकते हैं, हर एक स्कूल के लिए स्कूल वर्ड यूज कर सकते हैं, सो दिस इज कॉमन। ये क्या है, ये कॉमन नेम है बिकॉज हम इस वर्ड को, स्कूल वर्ड को हर एक स्कूल के लिए यूज कर सकते हैं। बट इफ आई राइट विद्याश्री एकेडमी, लेकिन मैं अगर लिखती हूँ विद्याश्री एकेडमी, सो दिस इज अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ स्कूल, ये क्या हो जाएगा, ये एक पर्टिकुलर स्कूल का नेम हो जाएगा, सो दिस इज स्पेशल, ये क्या हो जाएगा, ये एक स्पेशल नेम हो जाएगा, जो एक पर्टिकुलर स्कूल का नेम है। हर एक स्कूल का नेम विद्याश्री एकेडमी नहीं है, ये एक पर्टिकुलर स्कूल का नेम है, सो दिस इज स्पेशल। लाइक दैट इफ आई राइट डीपीएस, so this is also a particular school name, ये भी क्या है, पर्टिकुलर स्कूल का नेम है, so this is a special name and school is a common name जो हम हर एक स्कूल के लिए यूज करते हैं। look here, there are some more examples, modern school, ये एक पर्टिकुलर स्कूल का नेम है, so M कैपिटल है यहाँ पर, एस भी कैपिटल है, मॉडल हाई स्कूल, बिकॉज अब ये स्कूल नेम में आ रहा है इसलिए एस कैपिटल है, मॉडल हाई स्कूल, दिस इज ऑल्सो नेम ऑफ अ स्कूल, पर्टिकुलर स्कूल का नेम है मॉडल हाई स्कूल, सो इसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। ओके, नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, पर्टिकुलर रिवर्स के भी नेम होते हैं, रिवर वर्ड हम हर एक रिवर के लिए यूज करते हैं, सो इसका आर हमेशा कैपिटल नहीं होगा, अगर ये फर्स्ट नंबर पर आता है सेंटेंस में तब हम आर कैपिटल लिख सकते हैं, लेकिन अगर इसका यूज सेंटेंस में मिडिल में या लास्ट में या कहीं पर भी होता है तो जरूरी नहीं है कि ये आर हमेशा कैपिटल आएगा। बट इफ आई राइट यमुना, अगर मैं लिखती हूँ यमुना, सो बाय विल कम ऑलवेज कैपिटल, बाय हमेशा कैपिटल आएगा बिकॉज इट इज अ स्पेशल नेम, क्योंकि ये एक स्पेशल नेम है एंड वी स्टार्ट अ स्पेशल नेम विद अ कैपिटल लेटर। नेक्स्ट, रेड सी, दिस इज द नेम ऑफ एन ओशियन, ये भी क्या है, ओशियन का नेम है, सी का नेम है, सो दिस इज ऑल्सो स्पेशल नेम, पर्टिकुलर ओशियन का नेम है। नेम्स ऑफ फेस्टिवल्स, फेस्टिवल्स के भी पर्टिकुलर नेम्स होते हैं, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, होली, ओणम, ईद, क्रिसमस, सो दीज ऑल आर द स्पेशल नेम्स, पर्टिकुलर नेम्स ऑफ द फेस्टिवल्स, हर एक फेस्टिवल का पर्टिकुलर अलग अलग नेम होता है, सो ये होली एच कैपिटल आएगा बिकॉज दिस इज अ स्पेशल नेम, ओणम, ओणम का एन भी कैपिटल आएगा, बाय बिकॉज इट इज अ स्पेशल नेम, ईद, ईद का ई भी कैपिटल आएगा because Eid is also special name, particular festival name, Christmas is also a particular festival name, ये भी क्या है, एक पर्टिकुलर फेस्टिवल का नेम है। इसी तरह और भी काफी सारे स्पेशल नेम्स होते हैं, लाइक नेम्स ऑफ बुक्स, कुछ बुक्स के नेम्स भी पर्टिकुलर होते हैं, राइट, लाइक नेम ऑफ होली बुक्स, होली बुक्स के नेम्स हैं हमारे, रामायणा, रामायणा, दिस इज अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ होली बुक, ये भी एक पर्टिकुलर नेम है, राइट।
गीता, ये सब होली बुक्स के नेम है। तो ये स्पेशल नेम्स हो गए। होली बुक हम हर एक होली बुक के लिए यूज कर सकते हैं। होली बुक जो वर्ड है हर एक बुक के लिए, होली मीन्स धार्मिक, हर एक वर्ड हर एक बुक के लिए यूज किया जाता है। लेकिन रामायण एक ये पर्टिकुलर होली बुक का नेम है, पर्टिकुलर बुक का नेम है। सो रामायण ये आपका स्पेशल हो गया। सो आर हमेशा कैपिटल आएगा, चाहे ये कहीं भी यूज हो सेंटेंस में। लाइक हम एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक मैंने लिखा my younger sister's name is, my younger sister's name is प्रिया। सो हमने सेंटेंस स्टार्ट किया कैपिटल लेटर से। We have started the sentence with a capital letter because it is a rule when we write a sentence, we always start a sentence with a capital letter. So first letter हमारा हमेशा capital होता है, right? So my younger, all the other letters are small, बाकी letters small है। Younger, sisters, name, ये भी आपका common name है, ये भी common है। So ये सब small में write होगा। Is Priya, but this is a special name. Priya is a special name of a particular girl, एक पर्टिकुलर गर्ल का नेम है। सो हम इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखेंगे। अब ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में नहीं है, बट फिर भी पी कैपिटल आएगा बिकॉज इट इज अ स्पेशल नेम एंड इट इज अ रूल। ये रूल होता है कि जो स्पेशल नेम्स होते हैं, द स्पेशल नेम्स ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। जो स्पेशल नेम्स होते हैं हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं, चाहे वो सेंटेंस के बिगिनिंग में हो, मिडिल में हो या फिर लास्ट में हो। सो लेट नाउ डू सम एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल्स करते हैं। लुक एट द क्वेश्चन नंबर ए। Rewrite these sentences using capital letters where you think they are necessary. Okay? So यहाँ पर हम कैपिटल लेटर्स का यूज कर रहे हैं। एंड वेयर डू वी यूज फुल स्टॉप? देयर इज वन मोर थिंग, एक और चीज है इस चैप्टर में, हमें फुल स्टॉप का यूज करना भी सीखना है। वेयर वी यूज फुल स्टॉप? फुल स्टॉप इज अ स्मॉल डॉट। फुल स्टॉप एक छोटा सा डॉट होता है एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। अ सेंटेंस कैन बी अ क्वेश्चन, कैन बी अ स्टेटमेंट। सेंटेंस हमारा क्वेश्चन भी हो सकता है और स्टेटमेंट भी हो सकता है। ये हम लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं, राइट? सेंटेंस स्टेटमेंट भी हो सकता है और क्वेश्चन भी हो सकता है। इफ अ सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट, अगर एक सेंटेंस आपका स्टेटमेंट है, मीन्स कोई चीज आपको बताई जा रही है, कोई चीज कही जा रही है, आपको किसी चीज के बारे में बताया जा रहा है, देन इट इज अ स्टेटमेंट। एंड अ स्टेटमेंट ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप। अ स्टेटमेंट always ends with a फुल स्टॉप। एक जो स्टेटमेंट होती है, जो बात हम कह रहे हैं, वो हमेशा फुल स्टॉप से एंड होती है। फुल स्टॉप का यूज कब करते हैं हम? व्हेन वी कंप्लीट आवर सेंटेंस, जब हम अपनी बात कंप्लीट कर देते हैं, अपना सेंटेंस कंप्लीट कर देते हैं, तो उस सेंटेंस का एंड देने के लिए हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। दैट ये बताने के लिए कि हमारा सेंटेंस अब कंप्लीट हो चुका है, तब हम लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करते हैं। और फुल स्टॉप स्टेटमेंट्स के एंड में यूज की जाती है। एंड इफ देयर इज अ क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन है तो हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। अगर सेंटेंस आपका क्वेश्चन है तो फिर हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। ओके, इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द फुल स्टॉप ओनली। इस चैप्टर में अभी हम फुल स्टॉप के बारे में पढ़ेंगे ओनली, कैपिटल लेटर्स एंड full stop. So now let's do some exercise. Exercise number A. Rewrite these sentences using capital letters where you think they are necessary. Now we have to rewrite these sentences by using capital letters. Okay, they are necessary. जहां पर भी हमें जरूरत है capital letters बनाने की,
वहां हमें कैपिटल लेटर्स फॉर्म करने हैं। ओके, सो लुक एट द नंबर 1 सेंटेंस, द डॉग इज बार्किंग लाउडली। सो we already learned that we start a sentence with a capital letter. ये अभी अभी मैंने रूल बताया था, रूल नंबर 1, we always start a sentence with a capital letter. So first letter should be capital, so write T capital. T capital आ जाएगा and all the rest of the sentence will be same. बाकी का जो sentence बच गया वो सेम रहेगा because there is no special name. इस sentence में और कोई भी special name नहीं है. So फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल, टी कैपिटल बना दिया हमने। द वन मिनट, यस, द डॉग, डॉग इज अ कॉमन नेम, इज बार्किंग, ये वर्ब है आपका। हमें सिर्फ स्पेशल नेम्स याद रखना है। एक तो ये याद रखना है कि हमारा सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा एंड सेकेंड थिंग हमें ये चीज याद रखनी है, इफ देयर इज एन एनी स्पेशल नेम तो उसका फर्स्ट लेटर भी क्या होगा, कैपिटल होगा। सो इसका फर्स्ट लेटर हमने कैपिटल बना दिया एंड देयर इज नो स्पेशल नेम, यहाँ पर और कोई स्पेशल नेम नहीं है, सो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी सेम, बाकी का सेंटेंस सेम हो जाएगा। द डॉग इज बार्किंग लाउडली, the dog is barking loudly. Put full stop. Full stop is already given in the sentence. Full stop already दिया हुआ है, so हमें सिर्फ इस एक्सरसाइज में कैपिटल लेटर्स का यूज करना है। Now look at the second sentence. I will be late for my school. So I is the first letter of the sentence. This is the first letter of the sentence. So we will write it capital. ये हम कैपिटल लिखेंगे एंड आई ऑलवेज कम्स कैपिटल, आई हमेशा कैपिटल आता है चाहे वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो, मिड में आए या फिर एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हो या फिर सेंटेंस के एंड में हो, कहीं पर भी अगर आई आएगा तो आई हमेशा कैपिटल ही आएगा। सो आई विल बी, आई विल बी वर्ब है हमारी, लेट फॉर my school. School is a common name. This is not a special name. So इसका S हमें capital नहीं बनाना है. Okay, so this is a common name. So all rest of the sentence will remain same. बाकी का sentence कैसा रहेगा? Same रहेगा. Only I capital होगा. Next sentence number 3. Divya is my best friend. Now look at the sentence Divya. This is a special name and the first word of the sentence also. First word भी है and special name भी है. तो first word है तो इसलिए हमारा रूल के अकॉर्डिंग D कैपिटल आ जाएगा एंड अगर ये दिव्या बीच में या फिर कहीं और होता सेंटेंस में तो भी D कैपिटल आता, लेकिन यदि स्टार्टिंग में आया है तो D तो कैपिटल ही होगा। DIVYA, Divya is my best friend. अब फ्रेंड का F कैपिटल नहीं होगा बिकॉज इट इज अ कॉमन नेम। नाउ नंबर 4, she stays in Delhi. She stays in Delhi. So she, this is the first word of the sentence. ये पहला word है sentence का, so इस word का पहला letter capital होना चाहिए. The first letter of this word should be capital. So we will write S capital. S capital. Now SHE, she stays in. Now look at this word Delhi. This is a special name, a particular name of a city. ये particular city का name है Delhi. So this is a special name. So its first letter should be capital. तो इसका first letter कैसा होना चाहिए? Capital होना चाहिए. अब ये sentence के end में आ रहा है, middle में नहीं, starting में नहीं है, लेकिन end में आ रहा है. But फिर भी हम D capital लिखेंगे because it is a special name. So write D capital. And all the letters will be small. बाकी के letters इसके small होंगे.
She stays in Delhi. Now look at the number 5 sentence. I study in modern public school. So there is also a special name. यहाँ पर भी एक special name है. A name of a particular school. एक particular school का name दिया गया है. Modern public school. So first तो हम पहला letter capital करेंगे जो sentence का first letter है. So I should be capital. I. Okay. Now study in. I study in. Now modern public school. So modern का M capital होगा, public का P and in school S should be capital. M capital, P capital and S capital because these three words are the names of a particular school. क्योंकि ये तीनों words किसके उसमें आ रहे हैं, ये name of a school, ये एक school का name है, particular school का name है. तो इन words का first letter हम capital write करेंगे. I stay in modern. M capital, O D E R N. Modern. Now again P capital and all the letters will be small. P U B L I C. Public. And again school. S capital. अब यहाँ पर बेटा ये कॉमन नेम नहीं है. दिस इज अ स्पेशल नेम बिकॉज स्कूल आपका स्कूल के नेम में आ रहा है, अलग से नहीं दिया है, ये स्कूल के नेम में इंक्लूड है. So S should be capital and all the letters will remain small. So this is a sentence. I study in modern public school. So I capital because this is the first letter of the sentence. Modern public school. This is a special name. So we write M capital, P capital and S capital. Now come on the next sentence. We will visit Agra in December. So V. This is the first word of a sentence. So W should be capital. W कैसा होना चाहिए? Capital होना चाहिए क्योंकि ये पहला word है sentence का और first word का first letter हमारा capital आता है. W capital. We will visit. Now look at the word Agra. This is a special name. Agra, name of a particular city. एक particular city का name है Agra. So this is a special name. So we will write A capital. हम क्या करेंगे? A capital लिखेंगे क्योंकि ये special name है और special names का first letter capital होता है. A capital. G R A. Agra in. Now there is another special name, December. This is the particular name of a month. ये भी एक particular month का name है, December. So D should be capital. Okay. And E C E M D E R. These letters will remain in small. ये आपके small ही रहेंगे. D E C E M D E R. December. Full stop. Okay, so these are some sentences. First number sentence, the dog is barking loudly. T capital we have started because we always start a sentence with a capital letter. I will be late for my school. Divya is my best friend. She stays in Delhi. Delhi special name है, so हमने T capital बना दिया. I study in modern public school. I and modern public school is a special name. So we make M capital, P capital and S capital. Number 6, we will visit Agra in December. So V is the first word, so we make W capital because this is the first word of a sentence. Will visit Agra. Agra is a special name of a particular city, so we make A capital. And in December, December is also a special name of a particular month. So D should be capital. Now this exercise is completed. Now come on the next exercise. Now there is the use of full stop, which I had told you already. जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ full stop का use. So where we use a full stop? कहाँ पर हम use करते हैं full stop का? Look at the sentences. Veena is my friend. This is a sentence.
कि एक सेंटेंस है वीना इज माय फ्रेंड। सो यहाँ पर आपको कुछ बताया जा रहा है कि वीना मेरी फ्रेंड है एंड यहाँ पर हमारा सेंटेंस फिनिश हो गया, एंड हो गया। सो वी पुट फुल स्टॉप। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एक छोटा सा डॉट लगा हुआ है। नेक्स्ट, वी प्ले टुगेदर, हम साथ में खेलते हैं। दिस इज एन अनदर सेंटेंस, ये भी एक एक और सेंटेंस है। सो वी प्ले टुगेदर, ये भी हमारा सेंटेंस एंड हुआ तो हमने यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया। सो द लिटिल डॉट एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस इज कॉल्ड अ फुल स्टॉप। जो इन दोनों सेंटेंस के एंड पर जो छोटा सा डॉट है, लाइक वीना इज माई फ्रेंड, ये हमारा सेंटेंस एंड हुआ तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा डॉट लगाया। दिस इज द फुल स्टॉप। ये क्या है, ये लिटिल जो छोटा सा डॉट है इसे हम फुल स्टॉप बोलते हैं। ओके, सो द लिटिल डॉट एट द एंड ऑफ ईच सेंटेंस इज कॉल्ड अ फुल स्टॉप। ओके, सो फुल स्टॉप का यूज हम एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस, एक सेंटेंस के एंड में करते हैं। एंड सेंटेंस शुड बी अ स्टेटमेंट। सेंटेंस क्या होना चाहिए, एक स्टेटमेंट होना चाहिए, ना कि एक क्वेश्चन। ओके, सो वी स्टार्ट अ सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर। इन दिस चैप्टर वी हैव लर्न टू थिंग्स। दो चीजें हमने इसमें सीखी। एक तो क्या, वी स्टार्ट अ सेंटेंस विद अ कैपिटल लेटर, कि हम जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। एंड वी एंड अ सेंटेंस विद अ फुल स्टॉप। और एक सेंटेंस का एंड मीन्स एक सेंटेंस को फिनिश हम किससे करते हैं, फुल स्टॉप से करते हैं। ओके, तो ये दोनों चीज हमारे सेंटेंस में नेसेसरी है, राइट। So now look at the exercise number B. टिक द करेक्टली रिटन सेंटेंसेस। अब हमें इन एक्सरसाइज में जो करेक्टली रिटन सेंटेंसेस हैं, जो सही सेंटेंसेस हैं, उनको टिक करना है ओनली। सो लुक एट द फर्स्ट, वी आर इन द क्लासरूम। सो दिस इज द रॉन्ग सेंटेंस बिकॉज यहाँ पर ना तो फर्स्ट लेटर कैपिटल है ना ही फुल स्टॉप है, तो ये करेक्ट सेंटेंस नहीं माना जाएगा। हमें पर्टिकुलर जो रूल्स है उन अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को फॉर्म करना होगा। सो लुक एट द ऑप्शन नंबर ए, वी आर इन द क्लासरूम। इज दिस द करेक्ट सेंटेंस? क्या ये करेक्ट सेंटेंस है? नो, बिकॉज दिस ये फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं है एंड क्लासरूम इज नॉट अ स्पेशल नेम, सो इसका ये सी कैपिटल लिखने की कोई नीड नहीं है। लुक एट द नंबर बी, we are in the classroom. Yes, this is the correct sentence because we always start a sentence with a capital letter, and look here, this is the capital. Are in the classroom, classroom का C भी कैपिटल नहीं आएगा because it is a common name, not a special name. तो यहाँ पर सिर्फ W कैपिटल आएगा, are in the classroom, all the words will remain in small letters. बाकी के words किस पे रहेंगे, small letters में रहेंगे. So option number B is the correct answer. Option B is the correct answer. Next, number 2, Vishal is drawing a picture. विशाल इज ड्रॉइंग अ पिक्चर। सो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? लुक, विशाल इज ड्रॉइंग अ पिक्चर। सो हम विशाल का वी कैपिटल बनेगा बिकॉज दिस इज द फर्स्ट लेटर। विशाल का वी कैपिटल होना चाहिए, इज ड्रॉइंग अ पिक्चर एंड फुल स्टॉप एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। सो लुक इन द ऑप्शंस, Vishal is drawing a picture, या Vishal is drawing a picture, which is the correct answer? Vishal is drawing a picture, क्योंकि इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल है एंड यहाँ पर स्मॉल है, so this is wrong, this is right. Vishal is drawing a picture. Now look at the number 3 sentence. The teacher is in the class. So हमें first letter capital बनाना है, T capital आएगा and put full stop at the end of the sentence. Now look which is the correct option. The teacher is in the class or the teacher is in the class. So option number A is the correct answer. The teacher is in the class. यहाँ पर B correct क्यों नहीं है? Because यहाँ पर teacher का T capital बना दिया एंड हमें टीचर का टी कैपिटल नहीं बनाना है बिकॉज टीचर इज अ कॉमन नेम, नॉट अ स्पेशल नेम। टीचर पर्टिकुलर हर एक टीचर के लिए यूज किया जाता है, टीचर हर एक टीचर के लिए यूज किया जाता है, सो दिस इज अ कॉमन नेम, नॉट अ पर्टिकुलर नेम।
So option number A is the correct answer. Now look at the sentence number 3. Sentence number 4, sorry. Mohan has lost his pencil. Mohan has lost his pencil. So first letter should be capital. M capital होगा. Has lost his pencil. Put full stop at the end of a sentence. So what is the which will be the correct option? Mohan has lost his pencil. No, this is not correct answer because M यहाँ पर small है और हमें first letter capital बनाना है. So Mohan has lost his pencil. This is the correct answer. Next, number 5. Vani is reading a story. So Vani, B should be capital. So Vani is reading a story or Vani is reading a story. Option number A is the correct answer. B correct नहीं है because यहाँ पर story का S capital बना दिया जबकि ये small आएगा because it is a common name, not a special name. Number 6. It is Sunday morning. It is Sunday morning. So what is the correct sentence? इसका correct sentence क्या होगा? First letter should be capital. So I capital बनेगा. It is Sunday is a special name. So S should be capital. S हमारा capital होना चाहिए because it is a special name. It is Sunday morning. So morning will remain same. Now check the options which is the correct option. It is Sunday morning. ये sentence कौन से option में है? Option number A. It is a Sunday morning. No. यहाँ पर H small है. It is a Sunday morning. Yes. B is the correct option. Now number 7. Our school will reopen on Monday. Our school will reopen on Monday. So what will be the correct sentence? O-U-R. R. O should be capital because this is the first letter of a sentence. So our school will remain, sorry, will reopen. Will reopen on Monday. Now M should be capital because Monday is a special name. So M capital O-N-D-A-Y, Monday. Okay. So look at the options. Our school will reopen on Monday or our school will reopen on Monday. So option number D is correct because R O capital है first letter and M Monday का M भी capital है and in the number A option R का O small है जबकि हमारा first letter कैसा होना चाहिए capital. Now question number 8, sentence number 8. January is the first month of the year. So January का J capital बनेगा because it is the first word of a sentence and first word का first letter हमारा capital आता है. January is the first month of the year. Put full stop. And January is also special name. ये अगर बाद में sentence के middle या फिर end में आता तो भी J capital ही होता. So January is the first month of the year. Choose the correct option. January is the first month of the year or January is the first month of the year. So option number A is the correct answer. So we have done all the answers. So look at the answers again. Yes. It is a Sunday morning. Number 1, option B is the answer. Number 2, Vishal is drawing a picture. Option A is the answer. Number 3, the teacher is in the class. Option A is the answer. Mohan has lost his pencil. Number 4, Mohan has lost his pencil. Option number B is the answer. Vani is reading a story. Option A. It is Sunday morning. Option B is the correct answer. Number 7, our school will reopen on Monday. Option number B is the correct answer. January is the first month of the year. Option number A is the correct answer. So, here we have learned about the use of capital letters and full stop in a sentence.
एक सेंटेंस में हम कैपिटल लेटर्स का यूज कहाँ कहाँ करते हैं और कहाँ हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं. ओके, सो दिस इज आवर चैप्टर नंबर 4. थैंक यू.